So today we will talk about mindset. How important is the mindset? क्या अगर हमारा mindset अच्छा है, क्या हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं? या हमें अपनी स्किल्स का नहीं पता, या हमें स्किल्स नहीं आती, क्या if our mindset is good, if our mindset is proper, can we achieve all these things? Today we will discuss about mindset in this topic. So first of all, what is mindset? See, हमें बचपन से सिर्फ एक चीज सिखाई जाती है, that we have to focus on our studies, we have to be intelligent. But हमें सबसे पहले अपनी आज एक गलतफहमी को दूर करना पड़ेगा. Intelligence is not about mindset. Being intelligent and having a positive mindset, having a powerful mindset, having a growth mindset is very different. Both these two things are very different. मैंने इतने बच्चे देखे हैं जो शायद मेरे टाइम पे when I was in the school they were toppers of the class, but today they are nothing because they were not having that mindset. And I have seen people who were backbenchers, who were failures of their class, in their class, but today they are on different heights because they were having that mindset. See, आज के टाइम में सब लोग बोलते हैं कि we have to run behind the skills. हमें अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, हमने अपने माइंड को शार्प करना है. वी हैव टू रीड द बुक्स, वी हैव टू गेट द एजुकेशन, और वी हैव टू रन बिहाइंड द न्यू स्किल्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड. बट नो वन टेल्स हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव दैट माइंडसेट, हैव दैट पॉजिटिव थिंकिंग टुवर्ड्स योर लाइफ टू ग्रैब ऑल दीज अपॉर्चुनिटी, टू ग्रैब ऑल दीज स्किल. स्किल्स को सीखना से बहुत इजी है, बट अगर हमारा वो माइंडसेट नहीं है, अगर हम उन स्किल्स को सीख भी लेते हैं, तब भी वी विल नॉट बी एबल टू अप्लाई दैट स्किल्स. कहते हैं ना कि कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, दे नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते. दे आर नॉट फाइनेंशियली गुड, दे आर नॉट फाइनेंशियली सक्सेसफुल, और दे आर नॉट लिविंग हैप्पी लाइफ. वो इसी वजह से क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा नहीं होता है. क्योंकि हमें बचपन से ये चीज सिखाई गई है that being intelligent and grabbing a lot of skill is only the two things which will make you successful, which will make your life very happy. But no, first of all we have to ask ourselves कि what is the present mindset today, क्योंकि we don't know कि हमारा mindset at present क्या है. हम सुबह उठते हैं, we go for a work, we come, we eat, we sleep. That's not a growth mindset. Growth mindset is a type of mindset जहां पे हमें अपनी growth देखनी है, not only financially. See, being financially rich, growing financially is not the target. What is the target of growth mindset? That you are growing in all the ways. You are growing in your relationships, you are growing individually, you are growing financially, you are growing with your values, you are growing with your ethics. That is a growth mindset. That is a positive mindset. अगर हमारी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है, अगर हमारी जिंदगी में नेगेटिविटी आ रही है, फिर भी if we are positive, if we are having a positive thinking, if we are giving time to ourselves, that's the growth mindset. वहां से हमें फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए और फाइनेंशियली रिच होने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी. क्यों? बिकॉज वी आर हैविंग दैट माइंडसेट. अगर हमारा ऐसा माइंडसेट है, हम कोई भी स्किल को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर सकते हैं. एंड इफ वी आर अडॉप्टिंग द न्यू स्किल्स वेरी क्विकली, हम उसको उतनी ही जल्दी अप्लाई कर सकते हैं, और जितनी ही जल्दी अप्लाई करेंगे, आई थिंक उतनी ही जल्दी वी विल स्टार्ट अर्निंग मनी. नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल. बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा. दे विल बी अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, like 50-60,000, having a good life, having a good small house, eating good, having friends, having good partner, everything is good. But फिर भी वो खुश नहीं होंगे. They will be like, यार मुझे ना ये भी चीज करनी है, ये भी चीज करनी है, मुझे इससे भी ऊपर जाना है, मुझे इससे भी ऊपर जाना है. See, having ambitions, having your dreams is very good thing. You should be like that. You should always be thinking more. You should always be like that. You have to reach always at the heights. But अगर हम उसके लिए अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हैं, अगर उसके लिए we are not able to live our present, that's not a good mindset. क्योंकि जो तुम्हारे पास आज है, if your mindset is not proper, you will lose everything very quickly. You will not be able to multiply that things. See, हमें समझना होगा कि
आज अगर हमारे पास कुछ है, वो तभी ग्रो होगा, वो तभी मल्टीप्लाई होगा अगर हमारा माइंडसेट इज अ विनिंग माइंडसेट। तुम एक बार फेल हो रहे हो, 2 बार फेल हो रहे हो, 3 बार फेल हो रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद मैं अपनी लाइफ में 1000-2000 टाइम्स फेल हुआ हूंगा। मैंने कितने बिजनेस स्टार्टअप्स किए, आई हैव इन्वेस्टेड सो मच ऑफ मनी इन डिफरेंट बिजनेस स्टार्टअप्स, खुद भी किया एंड लोगों के बिजनेस स्टार्टअप्स पे भी किया, एंड आई हैव लॉस्ट सो मेनी टाइम्स, बट मैंने हार नहीं मानी बिकॉज आई एम नॉट हैविंग दैट माइंडसेट। मैंने फिर भी 1 बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, 3 बार फेल हुआ, 4 बार फेल हुआ, 5वीं बार मैंने अपने आप को यह बोला कि शिवांग वेरी गुड, यू हैव फेल्ड 4 टाइम्स, दैट मीन you are 4% ahead of all the people. Why? क्योंकि जितनी बार तुम फेल हो रहे हो, उतनी बार तुम कुछ सीख रहे हो, उतनी बार तुम ट्राई कर रहे हो, एंड उतने ही % तुम लोगों से आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि 4 बार तुमने अपनी गलती को रियलाइज कर लिया, 4 बार तुमने सीख लिया कि अगर हम ये चीज करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। तो मतलब जब तुम 5th टाइम, जस्ट सी द प्रोबेबिलिटी, the 5th time when you will try, you are already aware about the 4 times that you don't have to use these 4 methods or 4 ways or 4 investment, whatever it is. You know that these 4 things were your failure, were not good for you, so you will not apply that 4 things to the 5th time. Now you will be having a very good probability of being successful in that 5th thing, because you already know कि 4 बार तुम फेल हो गए, अब 5th टाइम तुमने ये चीज नहीं करनी, तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी विल बी 70 to 80% कि यू विल बी अचीविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द 5th टाइम। सी यू डोंट हैव टू गेट स्केयर्ड फ्रॉम द फेलियर, बिकॉज फेलियर विल एक्चुअली टेल यू कि तुम कितना ऊपर जा सकते हो, तुम कितनी ग्रोथ लेके आ सकते हो अपने अंदर। क्योंकि जब तक तुम फेल नहीं हो रहे, इसका मतलब तुम कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे, दैट्स फॉर श्योर। और अगर तुम कुछ नया ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम किस चीज में अच्छे हो, तुम किस चीज में अच्छे नहीं हो। और जरूरी नहीं है कि तुम्हारा फेलियर छोटा होना चाहिए, तुम्हारी सक्सेस बड़ी होनी चाहिए। नहीं, मेरे फेलियर्स शायद बहुत बड़े थे एज कंपेयर टू माई सक्सेस, बट अगर मैं 1000 टाइम्स फेल हुआ और सिर्फ 10 बार आई एम बीइंग सक्सेसफुल इन जस्ट 10 थिंग्स, दैट मीन्स 1000 टाइम्स तो मैंने ऐसी चीज ट्राई की थी, मुझे पता है कि ये चीज मेरी लाइफ में कभी भी मुझे नहीं करनी है, क्योंकि मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। नाउ फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ, आज मैं 10 थिंग्स में सक्सेसफुल हूं, कल को अगर मैं 20 थिंग्स में भी सक्सेसफुल होऊंगा, तो दैट 10 थिंग्स विच विल बी इन एडिशन, मैं उसमें कभी फेल नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं 1000 थिंग्स में तो पहले ही फेल हो चुका हूं। मुझे पता है कि ये थिंग्स फेलियर की है, ये थिंग्स को मैंने यहां पे अप्लाई नहीं करना है। दैट्स द पॉजिटिव माइंडसेट, दैट्स द ग्रोथ माइंडसेट, दैट्स द विनिंग माइंडसेट। सी, मैं आजकल बच्चों को देखता हूं कि पीपल चूज देयर करियर्स कि किसमें ज्यादा पैसा है। भाई हर करियर में पैसा है, ऐसा कोई करियर नहीं जिसमें पैसा ना हो, बट दैट यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर यू, कहां पे तुम्हारा माइंड विल एक्चुअली वर्क। क्योंकि हर प्रोफेशन क्या तुम्हारे लिए है ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर तुम किसी चीज में अनसक्सेसफुल रहे हो, अगर तुम्हारा फेलियर हुआ है, इसका मतलब यह नहीं है कि यू आर अ लूजर, दैट यू आर अ फेलियर। नो, इसका मतलब यह है कि तुम लोगों से आज आगे निकलना स्टार्ट हो गए हो, तुम लोगों से आगे बढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम ट्राई कर रहे हो। बच्चे पेपर देते हैं, दे ट्राई फॉर एंट्रेंस एग्जाम आफ्टर 12th, एंड इफ दे आर नॉट क्लियर इन देयर एग्जाम्स, इफ दे डोंट गेट अ कॉलेज, वो ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, कि उनकी लाइफ एंड हो गई है। नहीं, ठीक है, तुमने 1 साल मेहनत करी, तुमने 2 साल मेहनत करी, तुमने हर चीज को सैक्रिफाइस किया, इसमें कोई मनाही नहीं है, बट वो 2 साल क्या तुम्हारी पूरी लाइफ को डिसाइड करेंगे? नहीं, क्योंकि वो 2 साल के बाद भी अगर इफ यू आर गेटिंग फेल्ड, सो कांग्रेचुलेशंस, दैट मींस तुम लोगों से 200 टाइम्स % आगे बढ़ गए हो। क्योंकि 2 साल में तुमने वो सारी चीजें सीख ली, वो सारी चीजों को लर्न कर लिया जो तुमने अप्लाई नहीं करनी है फॉर द नेक्स्ट टाइम। नाउ नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल डू एनीथिंग, तुम सेम एंट्रेंस पे बैठोगे, यू विल क्लियर। अगर दूसरी बार भी नहीं हुआ, तीसरी बार भी नहीं हुआ, तो दैट मीन्स तुम 400% लोगों से आगे बढ़ गए हो। क्यों? क्योंकि जो गलतियां लोगों ने सिर्फ 1 साल में सीख के पेपर क्लियर कर लिया, उन्होंने जो तुमने 3 साल में और गलतियां सीखी वो उनको नहीं पता। अब जब तुम अपने पाथ पे जाओगे, अपने करियर के अंदर कुछ ग्रो करोगे,
तब तुम्हें पता होगा कि 4 साल तुमने क्या गलतियां की थी जिसकी वजह से तुम्हारा एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ था। अब वो गलतियां तुम वापस नहीं करोगे, लेकिन जो 1 साल में क्लियर कर गया बच्चा पेपर, उसको वो गलतियां नहीं पता होंगी और वो गलतियां करेगा। When you both will be on this path, एक नीचे गिरेगा और तुम नीचे नहीं गिरोगे। क्यों? क्योंकि तुम पहले ही गिर के उठे हो। You know what are your mistakes. You will not do that. But उसको नहीं पता होगा। That's the winning mindset, positive mindset. See, इस दुनिया में कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है, कोई भी सक्सेसफुल नहीं है, कोई भी लूजर नहीं है। There is nothing failure, nothing success. It's all about your mind. तुम कैसे सोच रहे हो? आज you become the most richest person, then also it is not important that you are happy. And if you are the poorest person and you are happy, that means you are having that mindset. You know how to be happy, how to multiply your income. आज के टाइम में having skills is very important. I will not say that you should not run behind the skills. You should definitely run behind the skills. But before that, you should run behind how will you train your mind. क्यों? क्योंकि that's for sure life में किसी को भी सक्सेस, किसी को भी कोई भी अचीवमेंट बिना फेलियर के नहीं मिलता. They have to face failure, they have to face the pain, they have to sacrifice a lot of things. But क्या हम वो फेलियर को फेस करने के बाद, क्या हम वो पेन को सहने के बाद, क्या कुछ चीजें सैक्रिफाइस करने के बाद हम वापस उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे? क्योंकि अगर हम नहीं उठ पाए तो वो सारी चीजें वेस्ट हो जाएंगी. वो सारा सैक्रिफाइस, वो सारा पेन, वो सारा फेलियर, वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा. और अगर हमारा माइंडसेट ऐसा है, अगर हम उठ सकते हैं उससे ऊपर, दैट मीन्स हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. हम एक बार फेल हो जाएंगे, 2 बार फेल हो जाएंगे, 3 बार फेल हो जाएंगे, वी विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम. क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा है, हम उठ सकते हैं वापस ऊपर. सो बिफोर रनिंग बिहाइंड द स्किल्स, रन बिहाइंड योर माइंडसेट. हैव योर पॉजिटिव माइंडसेट, रीड गुड बुक्स, लिसन टू गुड पीपल, हैव योर अराउंड गुड पीपल, गो टू जिम, go to exercise, go for run, train your mind. This mind is only the game in this world. See, तुम फिजिकल फिट रह सकते हो, you are watching the videos. तुम फाइनेंशियली रिच बन सकते हो because you can watch the videos. But what about mind? कोई माइंड की बात नहीं करता. No one talks about mindset, how this mind works. This is the thing which we have to learn. If we are having a positive thinking, then nothing is impossible. क्योंकि तुम्हारे माइंड को ही नहीं पता कि इम्पॉसिबल चीज क्या है. तो अगर तुमसे वो एक बार नहीं हुई, जस्ट इमेजिन इफ योर माइंड डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पॉसिबल. अगर तुमसे एक बार वो चीज नहीं हुई, 2 बार नहीं हुई, 3 बार नहीं हुई, 4 बार नहीं हुई, 5 बार नहीं हुई, 6वीं बार तो होगी वो चीज. क्योंकि तुम्हारा माइंड बार बार उस चीज को ट्राई करता रहेगा. क्यों? क्योंकि तुम्हारे माइंड को पता ही नहीं है क्योंकि इम्पॉसिबल जैसी भी चीज है. तुम्हारे माइंड को पता ही नहीं है फेलियर क्या होता है. माइंड को सिर्फ ये लगेगा तुमने एक बार तुमसे नहीं हुई, मे बी यू वर लैकिंग इन सम पर्टिकुलर थिंग, उसके बाद फिर से ट्राई करेगा, उसके बाद फिर से वो ट्राई करेगा. सो यू हैव टू डेवलप दैट माइंडसेट, देन ओनली यू कैन अचीव द सक्सेस. अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अचीव द सक्सेस.